Chemistry Chapter 1, Language of Chemistry. In today's video, we are going to start with some doubt solving from exercise 1A. Second thing we are going to do is, look at the second part, that is balancing equations. Some of the topics need some more discussion, and we'll try to finish the third part also. So I hope that we can finish the chapter today itself. So let's go through the doubts of exercise 1A. The first doubt is in question number 8. What do you understand by the following terms? Acid radical and basic radical. So acid radicals are those radicals which uh, donates electron. Now let me check whether I'm correct or not. We have the formula for acid radical over here, with the definition for acid radical over here. Look over here. In the formation of potassium chloride, potassium radical has been contributed by the base potassium hydroxide and therefore is called basic radical. So I was wrong there. Potassium radical or metal ion is known as basic radical, and chloride radical has been contributed by hydrochloric acid and therefore it is called as acid radical. So positive ions, which are electropositive radicals or cations, are also known as basic radicals. So understand one thing once and for all. We have two types of ions. Ions are of two types, positive and negative. Positive ions donate electrons. Negative ions accept or gain electrons. Positive ions are mostly metallic ions. Negative ions are mostly non-metallic ions. Positive ions, they form a base when they react with hydroxide or oxide. So that's why they are also known as basic radicals. Positive ions are also known as basic radicals. What is the other name of positive ions? Positive ions are also known as cations. Negative ions are also known as anions. Negative ions are also known as anions. And these negative ions are known as acid radicals. So ये बात तुम समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना क्योंकि आगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत लोगों को इसमें डाउट आया है. Ions are of two types, positive ions or cations, negative ions or anions. Positive ions or cations donate electron and become positive ions. Negative ions, they accept electron and become negative ions. Metallic ions are generally positive, non-metallic ions are generally negative. Metallic ions or positive ions or cations are known as basic radicals. Non-metallic ions anions are known as acid radicals. Okay, so this is clear. So we can answer this question now. We are able to answer this question now. What do you understand by the terms acid radicals? Acid radicals are cations or positive ions. I'm sorry. Again, I'm making a mistake. I'm sorry. Basic radicals are positive ions or cations, and acid radicals are negative ions or anions. Correct? So this is clear. Let's go to the next question. Select the basic and acid radical in the following compounds. Okay, so MgSO4. Let's talk about MgSO4, and the rest of it you can do it. In MgSO4, which is the positive ion?
Of course, Mg2 plus. So what I have to do is I have to convert it into ions again. So magnesium has the valency 2 plus and SO4 has the valency 2 minus. If you crisscross and make a formula again, it will form MgSO4. So which is the positive ion? Mg2 plus. So that is basic radical. And which is the non-metallic ion over here? SO4 2 minus, which is negative ion. So that is acid radical. Okay, so this is clear, and you can solve the remaining questions from question number 10 like in the same way. Question number 11, again write the basic and acid radicals of the following and then write the chemical formula of these compounds. Very easy. So the first one I'll take again, barium sulfate. Barium sulfate. Barium sulfate is made from barium, whose valency is Ba2 plus, sulfate SO4 2 minus. So barium here is a positive ion, so that's why it is a basic radical, and sulfate is a negative ion, that's why it is a acid radical. And what is their formula? So you do crisscross method and you get BaSO4. You don't write 2, right? BaSO4, that's the chemical formula, right? So this is easy. You can do the rest of them. So those who left these questions due to acid and basic radicals, they can now go ahead and complete it. Okay, so we are done with this part. Okay, now let's come to the second part of the chapter, which I showed in my video, and you must have observed that I did not use this book for explaining that second part, because I wanted to focus on only one topic, that is balancing. Okay, what is balancing? So for that, I'm just going to go through it all over again to give you a little glimpse from this particular book as well. Some topics we might not have covered, so that will cover here, and I'll go through the definitions again, so it will be a good revision for you. So what is a chemical equation? Chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction using symbols and formulae of the substances involved in the reaction. ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का सिंबल O2, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल CO. सो दिस इज बेसिकली अ केमिकल इक्वेशन. ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन, ये सब हमने पढ़ा है. ठीक है, what else I need to tell you? Yeah, balanced equation, the equation in which the total number of atoms of each element in the reactants on the left side of the equation is the same as the total number of atoms in the products formed on the right side of the equation. ये भी हमने पढ़ा है, राइट? इक्वेशन क्यों बैलेंस होना चाहिए, ये भी मैंने तुम्हें बताया. Equation must be balanced in order to comply with the law of conservation of matter, which states that matter is neither created nor destroyed in the course of a chemical reaction. किसी भी chemical reaction में metal कभी भी create नहीं हो सकती है, destroy भी नहीं हो सकती है. The total number and types of atoms of a particular element involved in a chemical reaction always remains the same throughout a chemical reaction, and that's why the equation must be balanced. An unbalanced equation would mean that atoms have been created or destroyed. ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा था. तो दो मेथड्स है इसमें. हमने पहली वाली मेथड बहुत डिटेल में पढ़ी थी, हिट एंड ट्रायल मेथड, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ. We are going to focus in this particular video on the second method, that is partial equation method. इसके बारे में मैं बात करूंगा. तो okay, let's go to let's read this particular part. What does it say? The hit and trial method is very useful for balancing simple chemical equation, but it has some limitation. Hit and trial method की भी कुछ limitation है. वो क्या है? It takes time to balance complicated equation. तुमने देखा होगा जो मैंने इससे पहले वाला वीडियो डाला था. In that video, you must have observed that कुछ equation ऐसे थे जिसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा और मुझे काफ़ी हिट एंड ट्रायल के टेक्स लेने पड़े. सो
That is one drawback of hit and trial method. The mechanism, that is steps of the reaction, in that is how the reaction takes place of the is not clear. तो इसके लिए क्या होता है कि कभी मैं बैलेंस करता था किसी एक एलिमेंट को तो दूसरा एलिमेंट अनबैलेंस हो जाता था, फिर उसको बैलेंस करता था तो ये पहला वाला एलिमेंट अनबैलेंस हो जाता था, तो ये चलता रहता था। और फिर उसको करने के लिए फिर मुझे कैंसिल करके फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ती थी। दैट इज बिकॉज वी डोंट नो के रिएक्शन कौन से ऑर्डर में टेक प्लेस कर रहा है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज फर्स्ट thing which is getting reacted and then what is the second thing which is getting reacted, वो हमें नहीं पता। So balancing can be done more easily by supposing the complex reaction to take place in steps. If we know कि कोई complex reaction को अगर हमें balance करना है, and if we know that what steps are taking place in which order, then it will be very easy to balance equation. Write the equation for these individual steps and then add the equations, and this method is known as balancing by partial equation method, जो काफ़ी टीचर्स में फेवरेट है ये। यहाँ पे हालांकि बोला है कि नॉट इन सिलेबस, बट टिल लास्ट ईयर जो हमने नोटिस किया है, लास्ट ईयर तक पार्शियल इक्वेशन मेथड पूछा गया तुम्हारे रायन के एग्जाम में, और दूसरे स्कूल्स आई एम नॉट श्योर अबाउट देम, बट I'm sure about one school that they generally ask about partial equation method. So I would recommend everyone to understand this partial equation, because suppose ये अगर आ गया, suppose ये equation आ गया अगर, तो क्या करेंगे? आना चाहिए हमको partial equation method, और इसमें कुछ difficult नहीं है ज़्यादा कुछ, it's not difficult। ठीक है, तो एक बार ये समझ लेते हैं partial equation method क्या। तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, liberation of iodine from potassium iodide by reacting it with hydrogen peroxide is supposed to be completed in the following two steps। क्या क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, आयोडीन लिबरेट हो रहा है, किस में से लिबरेट हो रहा है, पोटेशियम आयोडाइड में से। पोटेशियम आयोडाइड किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये दो स्टेप में होता है। पहले जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, so chemistry mein there is this joke, I'll tell you the joke, you must be quite excited, अरे सर joke बोलने वाला है, that's not too great but let me tell you। So joke is like this, एक रेस्टोरेंट में दो लोग बैठे हैं एक टेबल के ऊपर, there are two people sitting on a table in a restaurant। ठीक है, वेटर आता है और पहले वाले आदमी से पूछता है, सर व्हाट यू विल हैव। तो पहला वाला आदमी बोलता है, आई विल हैव H2O, आई विल हैव H2O। ठीक है, फिर वेटर जाता है दूसरे वाले आदमी के पास और उसको पूछता है, व्हाट विल यू हैव सर। तो दूसरा वाला बोलता है, आई विल हैव H2O2। क्या बोलता है, आई विल हैव H2O2। तो वेटर जाता है किचन में और ये दोनों लोगों के लिए एक ग्लास लेके आता है जिसमें एक लिक्विड होता है, सपोजिटली वाटर होता है। ठीक है, दोनों ये पानी पीते हैं और जिसने H2O2 मांगा था वो आदमी मर जाता है, ही डाइज। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये जोक है, ये जोक है, रिडल समझ सकते हैं इसको, ऐसा क्यों होता है। बिकॉज वेटर ने जब पहले आदमी से पूछा उसने बोला H2O, H2O का मतलब वाटर होता है। जब दूसरे आदमी से पूछा तो उसने बोला H2O2। H2O2 वेटर को क्या लगा पता है, वेटर को लगा, वेटर को लगा, वाओ दिस इज फन, वेटर को लगा कि ये बोल रहा है
H2O2 and you know what is H2O2? तो वेटर H2O2 लेके आया उसके लिए and you know what is H2O2? H2O2 is hydrogen peroxide which is having one atom of oxygen more than H2O. वाटर से एक एटम ज्यादा है इसके पास, किसका? ऑक्सीजन का। वाटर जैसा ही दिखता है, लिक्विड होता है, ठीक है, ओडरलेस होता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। आई थिंक सो, आई एम 100 नॉट 100% श्योर बट यस आई थिंक सो। और ये होता है पॉइजनस, यू कैनॉट कंज्यूम इट, तो ये बेचारा पी के मर जाता है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा, इसको याद रखना, इसका यूज हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ये तुम्हारे सिलेबस में कितना है मुझे नहीं पता, बट कॉमन नॉलेज के लिए तो ये याद रखना या फिर पता होना जरूरी है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग वूंड्स। तुम्हें कोई चोट लगती है, घाव लगता है, तो उसको क्लीन करने के लिए। सो इट्स बेसिकली डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट है वो बैक्टीरियाज को, जर्म्स को मार देता है अगर वूंड्स पे उसको क्लीन किया तो डॉक्टर्स जब ये ड्रेसिंग करते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड पहले लगाते हैं और फिर ड्रेसिंग करते हैं, वूंड को क्लीन करके फिर ड्रेसिंग करते हैं, राइट। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में एक छोटी सी स्टोरी मैंने बताई है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सबसे पहले डीकम्पोज होता है एंड इट गिव्स वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन। नाउ यू विल बी वंडरिंग ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या है? नेसेंट, नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन होता है, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन का एक एटम होता है, ऑक्सीजन के एक सिंगल एटम को नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। देखते हैं नेसेंट वर्ड का गूगल पे क्या मीनिंग दिया है। लेट्स चेक। नेसेंट, NASCENT। मेरा कंप्यूटर स्लो हो गया। नेसेंट मीनिंग, नेसेंट पहला मीनिंग दिया है, हम लोग केमिस्ट्री का मीनिंग से पहले दूसरा मीनिंग पढ़ लेते हैं। जस्ट कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस एंड बिगिनिंग टू डिस्प्ले साइंस ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल। नेसेंट मतलब जो न्यू है, डेवलपिंग है, बडिंग है, ग्रोइंग है। केमिस्ट्री में इसका क्या मीनिंग है? फ्रेशली जनरेटेड इन अ रिएक्टिव फॉर्म। तो हम यहाँ पे जब नेसेंट ऑक्सीजन की बात करते हैं तो फ्रेशली जनरेटेड ऑक्सीजन है ये, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, विच इज जनरेटेड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, राइट। तो पहला स्टेप जो हमारा इक्वेशन का है, दैट इज दिस। व्हाट इज द स्टेप? what is the first step of the liberation of iodide from potassium liberation of iodine from potassium iodide to by reacting with hydrogen peroxide is the decomposition of hydrogen peroxide which gives you nascent oxygen. और ये जो nascent oxygen है, it oxidizes potassium iodide in the presence of water to give iodine and potassium hydroxide. so ये nascent oxygen वाटर के साथ मिक्स होके या फिर वाटर के साथ साथ पोटेशियम आयोडाइड को अटैक करता है, पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और आयोडीन रिलीज होता है। अब हम क्या करेंगे पता है? ये पहला इक्वेशन प्लस ये दूसरा इक्वेशन, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब ये ऐड करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे पता है? एक चीज नोट करना, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड पे अगर कोई सेम एलिमेंट्स है तो उनको कैंसिल कर देंगे। तो क्या क्या कैंसिल होगा? देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन है, दैट विल गेट कैंसल्ड विद दिस, सॉरी प्रोडक्ट साइड पे यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, दैट विल गेट कैंसल्ड विद द ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड ओवर हियर। यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल है, दैट विल गेट कैंसल्ड विद द वाटर का मॉलिक्यूल ऑन द रिएक्टेंट साइड। अच्छा, जो बाकी का बचता है उसको ऐड करके लिख देना है। तो H2O2 लिख दिया मैंने, 2Ki लिख दिया, 2KOH लिख दिया और I2 लिख दिया, हो गया बैलेंस इक्वेशन। दिस इज नोन एज पार्शियल इक्वेशन मेथड, जहां पे
we know the steps in which the reaction is proceeding. पहले H2O2 डिकम्पोज होता है और फिर नेसेंट ऑक्सीजन पोटेशियम आयोडाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑक्सीडाइज करता है टू गिव आयोडीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन है तो दोनों इक्वेशन को अलग अलग से लिख के बैलेंस करके ऐड करके फिर जो कॉमन चीज़ें हैं प्रोडक्ट साइड पे और रिएक्टेंट साइड पे उसको कट करके बाकी की चीज़ों को एज इट इज प्लस करके लिख दिया तो हमें बैलेंस इक्वेशन डायरेक्टली मिल जाए, राइट। सो दिस इज यू कैन से पार्शियल इक्वेशन मेथड। इसके बारे में मैं कुछ और बात करना चाहूँगा। पहला वाला तो सेम एग्जांपल दिया, ये वीरालाल की बुक का एक फोटो मैंने दिखाया है यहाँ पे। सो सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड एग्जांपल, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड बाय पोटेशियम परमैंगनेट। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड बाय पोटेशियम परमैंगनेट। तो तुम्हें क्वेश्चन में कैसे देंगे पता है? दे विल गिव यू दीज टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ए एंड बी। क्या है स्टेटमेंट? है पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट एंड वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन। चलो हम लोग इसको बनाते हैं। क्यों बनाते हैं हम लोग? यहाँ पे दिया हुआ है उसको ही देखते हैं, ठीक है। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम ओवर हियर, आई विल शो यू हियर। बहुत इजी है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसको बैलेंस किया है इसलिए बाद में 2 लगाया, ठीक है। रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 टू गिव पोटेशियम सल्फेट K2SO4, मैंगनीज सल्फेट MnSO4, वाटर H2O, नेसेंट ऑक्सीजन O, ठीक है। ये सब हमने बैलेंस कर लिया पूरा लिख के। पूरा इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे दिया था हमको, the whole information which they had given in a word form, we converted that information into equation form and balanced it. Then the second equation, nascent oxygen obtained above oxidizes hydrogen sulfide, ठीक है, टू सल्फर। तो बेसिकली हाइड्रोजन सल्फाइड नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमें सल्फर मिलता है और बाकी का क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। अब इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन जो बैलेंस किया था उसको हमने ये ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास कितने नेसेंट ऑक्सीजन थे? 5। तो यहाँ भी हमें पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे सब पे 5 आगे लिखना पड़ेगा, बिकॉज नेसेंट ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, 5 एटम्स है या 5 पार्टिकल्स है, ठीक है। So after that what we'll do is we'll cut the nascent oxygen's 5 molecules on the product side and on the reactant side. So what will be left with? 2 KMnO4 लिख दिया, 3H2SO4 लिख दिया, 5H2S जो आगे 5 मल्टीप्लाई होगा, देखो किया है मल्टीप्लाई, 5H2S लिख दिया, gives K2SO4 as it is, 2MnSO4 as it is, 3H2O प्लस 5H2O, यहाँ पे 5 है याद रखना, 3 + 5 टोटल कितना हो जाएगा? 8H2O प्लस 5S। दिस इज अ कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन, मोर कॉम्प्लिकेटेड बट मेक सेंस, इट मेक्स सेंस, ठीक है। सो दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ पार्शियल इक्वेशन मेथड। अब तुम जब इसको खुद से करोगे एक बार सॉल्व तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, otherwise it will look and seem difficult, right? So let's go ahead. कुछ और चीजें यहाँ पे बोली है वो लोगों ने, will try to study these things. Information conveyed by a balanced chemical equation. Balanced chemical equation हमें क्या क्या बताता है? It tells us about the actual reaction of the chemical change, actual result of the chemical change, कि chemical change में result क्या होगा, क्या मिलेगा। It tells us about the reactants involved and the products formed as a result of the reaction. Yes. It tells us about the number of molecules of each substance taking part and formed in the reaction. Here 2 molecules of sodium hydroxide react with 1 molecule of sulfuric acid to give 1 molecule of sodium sulfate and 2 molecules of water. ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलता है।
अबाउट केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल किससे बना है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज मेड अप ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन. It tells us about the molecular mass, that 80 parts by weight of sodium hydroxide, 80 parts by weight. So सोडियम का जो वेट है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, वो है 23, ऑक्सीजन का है 16, हाइड्रोजन का है 1. 16 प्लस 1 17 प्लस 23 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 80. 80 parts by weight of sodium hydroxide reacts with 98 parts by weight of sulfuric acid to give 142 parts by weight of sodium sulfate plus 36 part by weight of water. तो इट टेल्स यू अबाउट द मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास के हमें बारे में हमें आगे थर्ड पार्ट में डिटेल में पढ़ना है. सो प्लीज हैव सम पेशेंस. I'm going to teach you about that. It also proves the law of conservation of mass. जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर पढ़ा था, वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी होता है. वो क्या बोलता है कि टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेशन इज द सेम. According to the above equation, 178 grams of reactants are producing 178 grams of products. ठीक है. अच्छा, on the basis of experiments, it has been found that 22.4 liters of every gas at 760 mm pressure and 0 degree temperature weighs same as its molar mass. See, I'm not going to talk about this particular content right now. I won't say that this is very important. This is not important as of now. This you can say molar volume, ये जो मोलार वॉल्यूम 22.4 लीटर की बात कर रहे हैं, ये तुम्हें 10th क्लास में चैप्टर नंबर 4 मोल कॉन्सेप्ट में तुम्हें डिटेल में पढ़ने में आएगा, तो तभी हम लोग पढ़ेंगे इसको. ठीक है. सो यू कैन स्किप दिस पार्ट एज ऑफ नाउ. ठीक है. लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन हमें क्या नहीं बताता है. इट डज नॉट टेल्स यू अबाउट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन द प्रोडक्ट, वेदर द सब्सटेंस आर सॉलिड, लिक्विड और गैस. तुम्हें वो लिखना पड़ता है अलग से कि ये सब्सटेंस का स्टेट क्या है. उसके लिए तुम्हें फिजिकल नॉलेज होना जरूरी है कि ZnCl2 जिंक क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में नहीं. इट डज नॉट टेल यू अबाउट द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन कितना फास्ट होगा, स्लो होगा, ये नहीं पता चलता है हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से. वेदर हीट इज गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, वो भी हमें लिखना पड़ता है अलग से. हमें पता नहीं चलता. वी शुड हैव प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट हीट गिवन आउट और एब्जॉर्ब. द रिस्पेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. ये जो रिएक्टेंट्स है प्रोडक्ट्स है, कितने कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, ये हमें रिएक्शन देख के नहीं पता चलेगा. वी शुड हैव प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर दैट. द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड्स, मतलब रिएक्शन कितना फास्ट या स्लो जा रहा है. वेदर द रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये भी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज से पता चलता है. लुकिंग एट द इक्वेशन वी डोंट अंडरस्टैंड दिस. Whether the reaction is completed or it is not completed, this also we do not understand by looking at a chemical equation. But chemical equation को हम ज़्यादा informative बना सकते हैं with addition of our practical knowledge by writing the following information. जैसे कि we can write the information regarding temperature, pressure, catalyst, etc. provided above and or below the arrow separating the reactants and product. देखो, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड है, उसके बीच में ये एरो है. एरो के ऊपर मैंने लिखा है Fe प्लस MO. Fe मतलब आयन, MO मतलब मोलिब्डेनम. मोलिब्डेनम, दिस इज एन एलिमेंट, एक मेटल होता है. ये मोलिब्डेनम और आयन का जो मिक्सचर है, इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज समथिंग which alters the rate of reaction. Catalyst is a substance which alters the rate of reaction. मतलब क्या? Catalyst is something which makes the reaction faster or slower. Right? So नीचे देखो क्या लिखा है. 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताया है, 200 to 900 ATM प्रेशर बताया है. So ये सारे conditions है at which the reaction is taking place. Presence of catalyst and the temperature, particular temperature and pressure.
फिर हम फिजिकल स्टेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं by writing the letter S for solid, L for liquid, G for gas, AQ for aqueous solution. Aqueous solution मतलब solution in water. AQ, remember this. Aqueous, AQUEOUS, aqueous solution मतलब solution in water. किसी भी चीज़ को पानी में डाल के मिक्स किया, वो सॉल्ट को पानी में डाल के मिक्स किया, शुगर को पानी में डाल के मिक्स किया, तो वो एक्वेस सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो जिंक सॉलिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सोल्यूशन है, मतलब एसिड और वाटर का मिक्सचर है। जिंक क्लोराइड वाटर और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर होगा और हाइड्रोजन गैस होगा। सारे स्टेट्स पता चल गए। वी कैन ऑल्सो राइट अबाउट द हीट प्रोड्यूस्ड बाय राइटिंग प्लस हीट माइनस हीट। कभी कभी ऐसा भी दिखाते हैं प्लस ट्राइंगल माइनस ट्राइंगल। ट्राइंगल ट्राइंगल का मतलब हीट होता है, हीट इवॉल्व, हीट एब्जॉर्ब। इसके टाइप के रिएक्शन के बारे में हम लोग आई थिंक सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले, सो डोंट वरी अबाउट दैट। देन वी कैन ऑल्सो टेल अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स। एसिड डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। इफ इट इज कॉन्सेंट्रेटेड देन वी राइट CONC, कॉन्सेंट्रेटेड। अगर वो डाइल्यूट है तो DIL। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड? जिसमें कम पानी और ज्यादा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोल सकते, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब लेस वाटर मोर एसिड, डाइल्यूट मतलब मोर वाटर लेस एसिड। ठीक है, तो these are the methods with which a chemical equation can be made more informative. ठीक है, सो सिर्फ एक पार्ट मैंने तुम्हें स्किप करने बोला है, दैट इज बेसिकली योर मोलर वॉल्यूम। ये वाला पार्ट इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, हम लोग ये 10th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होता है? ये तुमने 8th में शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, फिर भी तुम्हारा थोड़ा रिवीजन करवाता हूँ। देखो, एटम्स बहुत छोटे होते हैं, दे कैन नॉट बी सीन और वेड डायरेक्टली। ठीक है, एटम्स को लेके मैं उसका वेट नहीं निकाल सकता, बट देर आर इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ फिजिक्स विच हैव एनेबल्ड अस टू नो द एब्सोल्यूट मास ऑफ नियरली ऑल काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। मतलब इनडायरेक्ट मेथड से हम एटम्स का मास पता लगा सकते हैं। तो हाइड्रोजन एटम का मास जो है दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कार्बन का है 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। एंड एज दीज masses are too small, it is not convenient to use kilograms or grams as unit for measuring the mass of atoms and molecules. So it therefore been considered appropriate to use the mass of some standard atom as a unit and then relate the masses of other atoms to it. तो साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि कुछ स्टैंडर्ड एटम्स का मास हम लोग ले लेंगे और उसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट बना देंगे और उसके मास से हम लोग दूसरे एटम्स के मासेस को कंपेयर करेंगे। सो द रिजल्टिंग मासेस ऑफ एटम्स आर नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास, RAM, और एटॉमिक वेट। इसमें जो वर्ड है रिलेटिव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटिव का मतलब क्या है? दैट वी आर रिलेटिंग the masses of given atoms with some masses of some standard atoms। ठीक है, तो पहले शुरुआत में क्या किया था कि हाइड्रोजन को we have taken hydrogen as, because it was the lightest element, it was taken as a unit, as a standard unit, and masses of other atoms were compared with the mass of hydrogen। ठीक है, but hydrogen being you know not very stable, I can say that, yeah, hydrogen being not very stable, in 1961 there was some changes made and carbon 12 नाम याद रखना, कार्बन 12 का मतलब कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। It was finally selected because its adoption least affected the values of atomic masses of various elements on the old standard. So carbon 12 being more stable, being abundantly available around us, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है कार्बन, और कार्बन के सिलेक्शन से जो ओरिजिनल एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मासेस की वैल्यूज है दूसरे एलिमेंट्स की, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुई। इसलिए कार्बन 12 को एक हमने स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई दूसरे जो एलिमेंट्स है उनके मासेस हम रिलेट करेंगे कार्बन 12 एटम के मास के साथ। तो एक्चुअली इसका डेफिनेशन क्या है ये भी देखो। रिलेटिव एटॉमिक मास
or atomic weight of an element is the number of times one atom of the element is heavier than 1/12 times the mass of a carbon of an atom of carbon 12. मतलब कोई एलिमेंट कार्बन 12 एटम के 1/12 मास से कितना ज्यादा हैवी है, उसको उस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं. उसका फॉर्मूला भी दिया है, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम. चलो अब मैं तुम्हें एक इसका एग्जांपल देता हूं. सो relative atomic mass of any element is the number of times ये number of times बहुत important है, is the number of times one atom of that element is heavier than 1/12 the mass of a कार्बन 12 एटम. ये रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन है. इसका मैं एग्जांपल देता हूं. देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 यूनिट्स. जो यूनिट है रिलेटिव एटॉमिक मास का वो है यू, एटॉमिक मास यूनिट, AMU या फिर यू बोलते हैं इसको. ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 यूनिट्स है. व्हाई? बिकॉज समझना इसको, ये किधर भी नहीं लिखा है कोई भी टेक्स्ट बुक में, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारे समझ के लिए. बिकॉज वन एटम ऑफ ऑक्सीजन is 16 times heavier than 1/12 the mass, 1/12 of the mass of a carbon 12 atom. कार्बन 12 एटम के 1/12 मास से 16 टाइम्स हेवियर है ऑक्सीजन के एक एटम का मास. इसलिए ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 16 यूनिट्स. ठीक है, तो अब तुम मुझे बताओ कि अगर रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 यूनिट्स है तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा? कंप्लीट दिस स्टेटमेंट. इट विल मीन दैट वन एटम ऑफ सोडियम, ये तुम्हें लिखना है, तुम्हारी बुक में नोट करना है इसको, मैं नहीं लिखूंगा तुम्हारे लिए, प्लीज नोट करो इसको अच्छे से. वन एटम ऑफ सोडियम, it means that one atom of sodium is 23 times heavier than 1/12 the mass of carbon 12 atom. अब तुम सोच रहे होगे ये 1/12 the mass of carbon 12 atom क्या बार बार बोल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? अब देखो, कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है? देखो, कार्बन 12 एटम में प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 6. न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 6. और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6. इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर का सिंबल है Z. एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 6. इसका मास नंबर कितना होता है? 12. ठीक है, मतलब कार्बन 12 एटम का मास कितना है? 12. तो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम कितना होगा? कितना होगा? 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 12, that is 1 unit, right? 1/12 of a mass of carbon 12 atom कितना है? 1 unit. मतलब कोई भी एटम 1 यूनिट से कितना ज्यादा हैवी है वही उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है. तो 1 यूनिट से ऑक्सीजन के एक एटम कितना टाइम्स हैवी है? 16 टाइम्स. 16 times 1 is 16. That's why oxygen is 16 times heavier than 1/12 the mass of a carbon 12 atom, और इसीलिए ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास भी 16 है. सो बेसिकली अगर तुम्हें रिलेटिव एटॉमिक मास पता लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन का अगर रिलेटिव एटॉमिक मास पता लगाना है तो ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन है? 8. कितने इलेक्ट्रॉन है? 8. कितने न्यूट्रॉन है? 8. तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? उसका मास. So oxygen का relative atomic mass will be equal to its atomic mass.
एटॉमिक वेट कितना है 8 + 8, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितना है 16 यूनिट्स। तुम्हें पता है ना प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, हमने पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड में, एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर में। अगर याद नहीं है तो वापस जाके देख लो, ठीक है। सो एटॉमिक मास क्या होता है ये क्लियर हुआ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, RMM, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है ये भी तुम्हें पता है, एटम और मॉलिक्यूल मैंने पहले ही क्लास में उसका डिफरेंस बताया है। Molecule is the smallest particle of a substance which can exist on its own without reacting with anything. So relative molecular mass of any molecule is the number of times one molecule of any substance, one molecule of any substance is heavier than 1/12 the mass of a कार्बन 12 एटम। कोई भी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल कितने टाइम्स हैवियर है 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम से, वही उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या फर्क है। रिलेटिव एटॉमिक मास में हम किसी एटम के मास को कंपेयर करते हैं 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम से, कार्बन 12 एटम से। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में हम किसी मॉलिक्यूल के मास को कंपेयर करते हैं, किससे, 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम से। समझ में आया, यही फर्क है। तो मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूं, बहुत इजी एग्जांपल दूंगा, ये देखो एग्जांपल देखो। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, H2 क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं वन, प्लीज नोट करो ये सब मेरे साथ साथ, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। Relative molecular mass of H2 or one molecule of hydrogen is 2 units, is 2 units। क्यों 2 units, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पे वन मॉलिक्यूल में, 2, तो टोटल मास कितना हो गया 2, which means that one molecule of hydrogen which is H2 is 2 times heavier than 1/12 the mass, 1/12 the mass of one atom of one molecule of hydrogen is 2 times heavier than 1/12 the mass of a hydrogen molecule, करेक्ट। अब तुम बताओ, और एक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O is, that is one molecule of water, ठीक है, is 18 यूनिट्स, ठीक है। अब ये क्यों 18 यूनिट्स है मैं तुम्हें यहां पे बताता हूं। H2O, हाइड्रोजन का मास कितना है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, 2 + 16 कितना हो गया 18 यूनिट्स। मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना है 18 यूनिट्स। इसका मीनिंग क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा है, विच मीन्स करके, क्या लिखोगे, विच मीन्स, प्लीज नोट कर लेना, विच मीन्स दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O is 18 times heavier than 1/12 the mass of a, ओहो, देखो यहाँ पे गलती की थी, 1/12 the mass of a कार्बन 12 एटम होना चाहिए। अच्छा हुआ देख लिया, ठीक है। तो फिर से बताता हूँ, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O is 18 units, which means that one molecule of H2O is 18 times heavier than 1/12 the mass of a carbon 12 atom, करेक्ट। तो वैसे ही तुम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस निकाल सकते हो। मैं तुम्हें और एग्जांपल देता हूँ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का, और कैसे ढूंढते हैं उसको। सपोज एक रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का एक एग्जांपल मैं देता हूँ,
एक कंपाउंड लेते हैं हम लोग। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, सिंपल वाला लेते हैं कंपाउंड। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्यूटिफुल। ठीक है, कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 12। ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 16। सो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? कार्बन का है 12 प्लस ऑक्सीजन का है 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि दो ऑक्सीजन है। सो दैट इज 12 प्लस 32 विच इज 44 यूनिट्स। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल। रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने कैसे ढूंढना सिखाया तुमको? उसके लिए तुम्हें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पता होने चाहिए, एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होना चाहिए। तो जो मास नंबर होता है या एटॉमिक वेट होता है किसी भी सब्सटेंस का, वही रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। बट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के लिए जो एटॉमिक मासेस है उनको बेसिकली तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ता है। कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम्स है एक मॉलिक्यूल में, एक पर्टिकुलर एटम के, उसको ऐड करना चाहिए, तो उससे आ जाएगा। और एक एग्जांपल दूं इसका? चलो और एक एग्जांपल ले लो। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ NH3, अमोनिया। अमोनिया का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना है पता है तुम्हें? रिलेटिव एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का कितना है? नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट है 15। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बताता हूँ, उसका टेबल भी है, मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी है। प्लस हाइड्रोजन का कितना है? 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। क्यों 3? क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। सो 15 प्लस 3 दैट इज 18 यूनिट्स। व्हाट इज दिस? दिस इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। वैसे तुम किसी भी कंपाउंड का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। करेक्ट। तो यहाँ पे यही चीज बताई है ये लोगों ने। बिफोर आई टॉट, आई कैन टीच यू, बिफोर आई कैन, बिफोर दे कैन, आई कैन शो यू इन द टेक्स्ट बुक, आई हैव टॉट यू ऑलरेडी। देखो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस वो लोग ने निकाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। CuSO4.5H2O। कॉपर का मास देखो कितना है? 63.5। सल्फर का कितना है? 32। ऑक्सीजन का है 16। हाइड्रोजन का हमें पता है 1 है। ठीक है, तो कॉपर का मास लिखा है यहाँ पे 63.5, सल्फर का लिखा 32, 4 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 4 लिख दिया। ठीक है, 5H2O, तो हाइड्रोजन का H2 का मास है 2, ऑक्सीजन का मास है 16, और सब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, सबको सॉल्व करके ऐड कर दिया, तो हमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स मिला। ठीक है, वैसे ही अमोनियम सल्फेट और केन शुगर, ये इनका भी कैलकुलेट किया हुआ है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक कैसे कैलकुलेट किया है। देखो यहाँ पे NH4 ट्वाइस है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा 2, हाइड्रोजन हो जाएगा 4 इंटू 2, 4 2 8। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों सब्सक्रिप्ट। सल्फर हो जाएगा 1 अकेला, और ऑक्सीजन हो जाएगा 4। तो नाइट्रोजन का मास, अच्छा 14 है, मैंने 15 लिया था क्या पहले? अच्छा 14 है, सॉरी मेरी गलती है। मैं वो पहले करेक्ट कर लेता हूँ, मेरी गलती, नहीं तो तुम बोलोगे सर क्या गलत कर रहे हैं आप। हाँ भाई ये वाला, सॉरी, सॉरी अबाउट दिस। ये 14 है, 14 है, तो ये भी चेंज हो जाएगा। 14 प्लस 3, 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, सो लेट मी शो यू। तो तुम पूछोगे सर ये मिलता कहाँ से, आपको कैसे मिला ये? बताता हूँ मैं तुम्हें। ये टेबल दिया हुआ है, तुम्हारी बुक में ही दिया हुआ है, अगर नहीं है तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, सो सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 14 टू ज़ा, आई एम सॉरी, 14 टू ज़ा, 1 8 ज़ा, 32 एंड 16 4 ज़ा, सबको ऐड करके 132, सिंपल। ठीक है, केन शुगर का भी वैसे ही किया है। ठीक है, इसके बाद है, लेट मी शो यू वेयर इज द मास वाला टेबल है यार, दिख नहीं रहा है। मास वाला टेबल किधर है? मास वाला टेबल दिख नहीं रहा है यहाँ पे। सो आई एम नॉट श्योर कि वो टेबल कहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारी बुक में। बट मैं तुम्हें एक मैं लेट मी शो यू वन पेज, लेट मी शो यू व्हाट आई हैव, लेट मी शो यू माय कंटेंट।
Okay. So my content which I have here, 10th क्लास की जो तुम्हारी सेलिना की बुक है उसमें सम इम्पोर्टेंट नोट्स में जाना है. एंड देन देर इज एटॉमिक मासेस. यस एब्सोल्युटली, यही इसी की बात कर रहा था मैं. दिखा देता हूँ तुमको. My computer is a little slow. Okay, so as you can see in front of you, you have all the atomic masses. इसको थोड़ा zoom करके देखा. दिख रहा है तुम्हें? तो यहाँ पे तुम देखते हो तो सारे पॉइंट में है. इसको तुम राउंड ऑफ भी कर सकते हो. जैसे हाइड्रोजन है तो उसको तुम 1 ले सकते हो, हीलियम 4, लिथियम 6.9 या 7 ले सकते हो. इसको राउंड ऑफ करना है. तो ये वाला जो टेबल है ना, मैं देखता हूँ इससे इजी वाला टेबल कोई मिलता है कि नहीं. नहीं, लेकिन नहीं मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम्हारी बुक में एक बार चेक करो कि एटॉमिक मासेस, रिलेटिव एटॉमिक मासेस का कोई टेबल है या नहीं. अगर नहीं है, ठीक है, तो ये वाला टेबल डेफिनेटली तुम्हें काम आएगा. और तुम्हें इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को याद रखना पड़ेगा. जैसे कि पहले 20 एलिमेंट्स तो सारे याद रखने पड़ेंगे, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक. ठीक है, उसके बाद भी इम्पोर्टेंट है. जैसे कॉपर का इम्पोर्टेंट है, जिंक का इम्पोर्टेंट है, लेड का इम्पोर्टेंट है. 207 है शायद लेड का. बताता हूँ मैं तुम्हें. ये देखो लेड का 82 नंबर, 207 दिख रहा है. तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा. तो ये जो पेज है ना, मैं ऐप के थ्रू तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा तुम्हारे रेफरेंस के लिए, और तुम्हारी बुक में भी चेक कर लो. और या फिर मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा कि यार प्लीज सेलिना खरीद लो. इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, अगर विराट दलाल में ये टेबल है तो ठीक है, बट सेलिना खरीद लो. इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. ठीक है, चलो तो ये हो गया. अब आते हैं अपने चैप्टर पे वापस. तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन. परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, इसका डेफिनेशन देख लो. Percentage composition of a compound is the percentage by weight of each element present in it. Total weight of the element present in one molecule of the compound upon gram molecular weight of the compound multiplied by 100. तुम बोलोगे सर ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या है? ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ही है जिसको हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं और फिर मैं तुम्हें एक सॉल्व करके बताता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है. ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला लिखा है ना टॉपिक, ये अगेन हम लोग 10th में पढ़ने वाले हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एम्पेरिकल फॉर्मूला नाउ. हमारा जो टारगेट है वो क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास जो हमने किया, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो मैंने बताया एग्जांपल्स के साथ, और डेफिनेशन समझाया, और यहाँ से भी एग्जांपल देखे हमने. और नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक हमें अभी करना है और चैप्टर खत्म हो जाएगा, हुर्रे, इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन. बहुत टाइम लगा है चैप्टर को, नहीं? हाँ, अगर ठीक से पढ़ेंगे तो टाइम लगता है यार. ठीक से पढ़ेंगे कोई भी चैप्टर तो टाइम लगता है. ये कोई हलवा थोड़ी है खा लिया. ठीक है, टाइम लगता है भाई, टाइम लगता है. ये तो रियल टीचर जो मेहनत करके पढ़ाता है उसी को पता है कितना पसीना बहाना पड़ता है, कितना गले से खून निकलता है हमारे, खून, ये पढ़ाते पढ़ाते. ओके, चलो लेट्स टॉक सीरियस सीरियस स्टफ. परसेंटेज कॉम्पोजिशन. सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे, फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें क्या दिखा है? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर. मतलब हाइड्रोजन का कितना परसेंट होता है वाटर में. वाटर में हाइड्रोजन का कितना परसेंट होता है? वाटर में वाटर का फॉर्मूला है H2O. हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 1 और ऑक्सीजन का 16. ये हमें पता है. ठीक है, तो पहले हमें करना है फर्स्ट स्टेप, वो जो कंपाउंड है उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना है जो है 18. अब हमें क्या करना है? हमें ये फॉर्मूला यूज करना है. हमें किसका परसेंटेज ढूंढना है? हाइड्रोजन का. किसका परसेंटेज निकालना है हमें? हाइड्रोजन का. तो इधर क्या बोला है? टोटल वेट ऑफ द एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल. कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन.
हाइड्रोजन का टोटल वेट हमारे पास कितना है 2, ठीक है। H2O में हाइड्रोजन का वेट कितना है 2 अपॉन मॉलिक्यूलर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। H2O का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, 2 अपॉन 18 इंटू 100, तो तुम्हें आंसर आएगा 11.11 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, या फिर 11.11% ऑफ हाइड्रोजन। ये है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वाला तुम्हें करके दिखाता हूं। मैं लूंगा एग्जांपल ये वाला, ये मुझे अच्छा लगता है। एक मिनट। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन Na2CO3। Na2CO3 में सबके परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें निकालना है। लेट्स डू दिस। Na2CO3, ठीक है। तो मेरा जो एलिमेंट है वो है, मेरा जो कंपाउंड है दैट इज Na2CO3। इसका नाम पता है क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अगर अभी तक तुमने वैलेंसीज लर्न नहीं किया, केमिकल के सिंबल्स और उनके नाम लर्न नहीं किए, तो प्लीज कर लो, क्योंकि अगर ये सब याद नहीं है ना, तो मैं अभी आगे बढ़ूंगा तुम्हें लगेगा कि ये क्या है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट की बात नहीं है यहाँ पे, याद रखो। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब मेमोराइजेशन ठीक होगा केमिस्ट्री में। तो इन दी एंड तुम ये मत बोलना कि मुझे तो केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आता। अबे तुम्हें सी फॉर कार्बन होता है, पहले ये तो याद कर लो, बाद में जजमेंट देना केमिस्ट्री समझ में आता है कि नहीं आता। समझ गए? चलो, सबका परसेंटेज निकालना है। बेसिकली हमें किसका किसका निकालना है? सोडियम कितना परसेंट है, कार्बन कितना परसेंट है, और ऑक्सीजन कितना परसेंट है, ये हमें ढूंढना है। दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। सो फर्स्ट लेट अस फाइंड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3, ठीक है। इसके लिए वी शुड नो दैट सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 23, कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 12, और ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? Na2CO3 मतलब 23 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस C that is 12 plus O3 that is 16 multiplied by 3, 23 twos are 46 plus 12 plus 48, ठीक है। सो 46 प्लस 48 प्लस 12 कितना होता है? 48 प्लस 12 होता है 60, तो ये कितना हो जाएगा? 106 यूनिट्स। ये क्या है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3। अब हमें ढूंढना है सबका परसेंटेज। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ सोडियम, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सोडियम क्या होगा? मास ऑफ सोडियम विच इज मास ऑफ सोडियम विच इज प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3। कितना मास सोडियम का प्रेजेंट है? 23 या 46? 46 बिकॉज Na2 है, ठीक है। सो 46 अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड दैट इज 106 मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे मिलेगा हमें परसेंटेज ऑफ सोडियम। लेट्स फाइंड इट आउट। सो लेट मी कैलकुलेट and then we'll check the answer with the textbook. So 46 divided by 106, ये आता है 0.43। 0.43 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना होता है? 43%, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सोडियम मिल गया 43%। सेकेंड, हमें किसका परसेंटेज निकालना है? कार्बन का। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन। कार्बन का कितना मास प्रेजेंट है वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट में? एक ही एटम है, मतलब मास कितना होगा? 12। सो 12 अपॉन 106, क्योंकि टोटल मॉलिक्यूलर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हमें लिखना है डिनोमिनेटर में, इनटू 100। सो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 106 which is 0.11 into 100 that is 11%, ठीक है। कार्बन का आ गया। थर्ड किसका होगा? थर्ड होगा ऑक्सीजन का। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना मास है टोटल? देखो, 3 ऑक्सीजन के एटम है इसमें, तो 16 3 48 होता है। 48 अपॉन 106 मल्टीप्लाइड बाय 100
will give you the percentage composition of oxygen. Let's find it out. 48 divided by 106, ये आता है 0.45, तो ये हो जाएगा 45 45। अब जब इनको ऐड करेंगे तीनों को, तो हमें नियर अबाउट 100 आना चाहिए, नियर अबाउट। ठीक है, नियर अबाउट कब आएगा? जब इसका जो डेसिमल्स है तुमने सही लिया है, तो हमने राउंड ऑफ करके सही लिया है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट देख लेते हैं नियर अबाउट क्या आता है। सो 45 प्लस 43 प्लस 11 कितना आता है? 99। इन तीनों को ऐड करने पे 99 आता है। मतलब यहाँ पे मैंने परसेंटेज में थोड़ा सा रफ राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, तो तुम्हें और एक पॉइंट में 43 पॉइंट समथिंग, 45 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग अगर निकालोगे तो तुम्हें प्रॉपर आंसर आएगा, 100% आएगा। मतलब सारे जो एलिमेंट्स है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, सोडियम, ऑक्सीजन, कार्बन, इन तीनों का जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, उन तीनों परसेंटेज कॉम्पोजिशन का सम 100% होना चाहिए। दैट इज योर बैकडोर मेथड फॉर रिकरेक्शन, रीचेकिंग। ठीक है, लेट्स चेक के इनका आंसर क्या है। तो परसेंटेज ऑफ सोडियम 43.4, हमने 43 लिख दिया था। 11.3 कार्बन है और 45.3 ऑक्सीजन है। तीनों को ऐड करोगे एग्जैक्टली 100 आएगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू बेसिकली फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन। एक एग्जाम्पल मैंने इसका लिया। द चैप्टर इज ओवर। ठीक है, आई एम गोइंग टू सेंड यू द फाइनल एक्सरसाइज 1C एज होमवर्क, एंड 1B तो हो गया तुम्हारा, राइट? तो 1C मैं तुम्हें भेज दूंगा होमवर्क में। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में मैंने डाउट्स क्लियर किए तुम्हारे एक्सरसाइज 1A में से। 1B में से कुछ पार्ट मैंने वापस तुम्हें रिवाइज करवाया एंड एक नया मेथड भी सिखाया, दैट इज पार्शियल इक्वेशन मेथड, एंड मैंने C पार्ट पूरा कवर किया, राइट? सो आई होप कि अभी तक ये चैप्टर प्रॉपर चल रहा है, तुम्हारे कोई डाउट्स नहीं है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू लेट्स सी अभी फाइनल एक्सरसाइज में तुम्हारे क्या डाउट्स आते हैं। उसके ऊपर से मुझे नेक्स्ट वीडियो कैसे बनाना है, कब बनाना है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड आफ्टर दिस basically I'm going to do second chapter of chemistry। तो हमारे 2 चैप्टर हो जाएंगे केमिस्ट्री में, 2 फिजिक्स में ऑलरेडी हो चुके हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स थे वो। ये भी बड़ा है, छोटा नहीं है चैप्टर, काफ़ी इन डेप्थ हमने पढ़ा है। एंड देन विल गो टू मैथ्स, विल डू 2-3 चैप्टर्स ऑफ ज्योमेट्री। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स है, फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, छोटे चैप्टर्स है, इंटरेस्टिंग है बट नए हैं। ज्योमेट्री है, प्रूफ ज्योमेट्री है। So we are going to target geometry and then come back to physics and then chemistry and then again maths। ऐसे करके हम लोग करेंगे। We are still not sure कि एग्जाम्स का क्या सीन है, क्योंकि they are trying to cancel all the exams like national level exams। So I'm not sure कि रायन इतना महान है कि वो तुम्हें, या कोई भी स्कूल फॉर दैट मैटर, के वो बुलाएगा इस कंडीशन में स्कूल में। सो आवर आइडिया इज टू फिनिश द चैप्टर, एवरी चैप्टर। एक भी चैप्टर हमें छोड़ना नहीं है, ये बात मैं क्लियर करता हूँ पेरेंट्स को भी। हम सब पूरा 100% बुक करने वाले हैं। उसका टाइम आराम से करेंगे हम लोग, लेकिन 100% करेंगे, प्रॉपरली करेंगे। और मेरी अभी टेस्ट जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स की नहीं हुई है, वो भी अभी मैं शेड्यूल कर रहा हूँ। वेरी सून आई एम गोइंग टू notify that to you। So I'm going to see you in the next video. Please do the homework properly. Bye bye.